Yeah, very good afternoon to all of you. Now I am here with one of my Delhi student for the mock interview of Nainital Bank PO. मैं इनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ. नैनीताल बैंक पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के मॉक चल रहे हैं. आप मॉक सुन करके हेल्प लीजिए. मेरा नंबर है 7503235358. आप सारे लोगों को इस मॉक से बहुत हेल्प मिलेगा और आप लोग इससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. आगे जो भी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एलआईसी एचएफएल का भी मॉक अपलोड हो रहा है चैनल पे. ओके गाइस, स्टार्ट बेटा. May I come in, sir? यस कृतिका, प्लीज कम. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज हैव ए सीट. Thank you, sir. ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you, sir, for giving me this opportunity and your valuable time. I am Kritika Mishra, a resident of Haldwani city of Uttarakhand. My father is a farmer, my mother is a homemaker, and my sister works for a MNC, and these all make up for my family. I have been born and brought up in Haldwani itself, and I have completed my graduation from Delhi University. Okay. Who is currently the CM and Governor of Uttarakhand, your state? Sir, the current governor of my state is Mr. Gurmeet Singh. Okay. You have completed your 12th in which year and what is the subject you are having? Sir, I completed my 12th from science subjects in the year 2014. Okay. You told me about the Gurmeet Singh name and you told about the CM also? No, sir. The CM is Mr. Pushkar Singh Dhami. Pushkar Singh Dhami. What your father is doing? Sir, my father is a farmer. Your father is a farmer. Ji. Yes. Okay. Who is currently agriculture minister? Shivraj Singh Chauhan. Mr. Shivraj Singh Chauhan, sir. Yes. Okay. In which year you have completed your graduation and from which college is in Delhi? Sir, I have completed my graduation in the year 2017 from Kalindi College of Delhi Delhi University. Kalindi College. It is in South Campus or North Campus? Sir, it is in center. It is in neither of the South or North campus. Good. उत्तराखंड कैसा लगता है आपको? देवभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि. उत्तराखंड में 4 धाम का नाम बताइए. वो जब इंग्लिश में पूछेंगे तो उनको इंग्लिश में आंसर देना, अगर वो हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में देना. ये तरीका होता है. जी सर. ठीक है. सर, उत्तराखंड में छोटा 4 धाम है जिनमें आपका केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री हो गया. ये चारों छोटा 4 धाम कहलाते हैं उत्तराखंड के. गुड, वेरी गुड. मुंशियारी सुना है? जी सर. ये किस कंट्री के बॉर्डर से टच करता है? उधर और ऊपर? सर, नेपाल से. ओके, चलिए अब उत्तराखंड में आए हैं तो नैनीताल होम पेज पे गए हैं. इसका कोई लोगो वगैरह देखे हैं? नैनीताल का लोगो कैसा दिखता है उसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी सर, नैनीताल बैंक का जो लोगो है वो नैनीताल पे ही बेस्ड है. नैनीताल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं उसमें और लेक के ऊपर एक बोट है. ओके, आराम से, जल्दी नहीं. नैनीताल बैंक के बारे में बताइए, आइदर इन इंग्लिश इन हिंदी, कोई इशू नहीं, जिसमें आपको अच्छा लगे. Sir, Nainital Bank, it is a century-old bank. It was founded in 1922. It has major shareholding of the Bank of Baroda, and it has glorious records since 1922, and it is one of the most flourishing banks of Uttarakhand. Good, very good. Tell me something about chairman, headquarter, and tagline of Nainital Bank. Sir, the headquarters of Nainital Bank are in Nainital itself, the Seven Oaks building. And the tagline of Nainital Bank is अमूल्य रिश्तों का अटूट बंधन. And I am sorry sir, I cannot recollect the chairman right now. Okay, no issue. ये कितने राज्यों में कार्य करता है, इसके कितने ब्रांच वगैरह हैं, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए बेटा तो? जी सर, नैनीताल बैंक 5 राज्यों में काम करता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो उसकी ब्रांच है वो उत्तराखंड में है. उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में. और इसकी जो टोटल ब्रांचेस हैं अभी तक का वो 170 हैं. नैनीताल बैंक का रिलेशन बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ है क्या बेटा? हाँ जी सर, बैंक ऑफ बड़ौदा की 98.57% शेयर होल्डिंग है नैनीताल बैंक में.
गुड। नैनीताल बैंक का कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है क्या? हाँ, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर चलिए अबाउट इट। चेक कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है? हाँ सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मोबाइल बैंकिंग ऐप है। नाम उसका? बीओबी वर्ल्ड। नाम BOB वर्ड, ओके, BOB बीओबी वर्ड। वर्ल्ड। जी आराम से, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कृतिका कि नैनीताल बैंक, अगर मैं बोलूं कि ये बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जी तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने के लिए यानी किसके अंडर ये बैंक कार्यरत है? सर, ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर जो भी बैंक लिस्टेड होते हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। व्हाट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक? सर, जो सेकेंड शेड्यूल में है RBI एक्ट 1934 के, जिनको RBI सुपरवाइज करता है, जिनको बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंदर के सारे रूल्स के अंदर रहना पड़ता है, जिनको SLR मेंटेन करना पड़ता है एंड अदर सच थिंग्स। गुड, वेरी गुड। होम पेज विजिट किया है आपने नैनीताल बैंक का? जी सर। वहाँ आपको क्या क्या देखने को मिला बेटा, आराम आराम से? सर, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर को, जो भी लेटेस्ट आपके नोटिफिकेशन आए होते हैं नैनीताल बैंक के, वहाँ पर को उसकी इंफॉर्मेशन होती है। कोई नई ब्रांच खुली है तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पर को डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, आपका MSMEs के लिए हो गए, गोल्ड हो गया, होम लोन हो गया, सारे होम और सब तरीके के डिपॉजिट्स के बारे में ऊपर टैब में लिखा होता है वहाँ नैनीताल बैंक के। नीचे आप जाएंगे तो विसल होल्डर्स पॉलिसी और ऐसी बहुत सारी पॉलिसियाँ, आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव की सारी चीजें, ये सारी चीजें होम पेज पे रहती है नैनीताल बैंक के। और वहाँ पर को कितने राज्यों में है, कितने ATM हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, ये सारी चीजें भी लिस्टेड रहती हैं। आपको कहीं ट्रेन पकड़ना है क्या बेटा अभी तुरंत? नहीं सर। तो आराम आराम से आंसर दीजिए बेटा, वंदे भारत मत चलाइए, क्योंकि आप वहाँ पर नए लोगों के साथ मिलेंगी। वो लोग आपसे पहले कभी मिले नहीं हैं, वो लोग धैर्य बच्चों को ढूंढते हैं क्योंकि आपको कस्टमर डीलिंग करना है। तो आप बिल्कुल आराम आराम से आंसर दे बेटा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ओके ओके। घबराइए मत बेटा। ओके कृतिका, आप मुझे ये बता दीजिए कि नैनीताल बैंक का कोई एक ऐसा स्कीम जिसका नाम आपको याद हो, जिसके बारे में आपको पता हो? नैनी गोल्ड लोन, नैनी डिपॉजिट्स। इसके बारे में कुछ आइडिया? ये तो आपने नाम बताया, इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कोई बात नहीं। Okay. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR? SLR में सर हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, और SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमें रखनी पड़ती है, एक प्रॉपर रेशियो जो RBI के द्वारा दिया जाता है। एंड CRR इज द कैश रिजर्व रेशियो, जितना हमारे पास लिक्विड कैश रहना चाहिए हमारे बैंक की ब्रांच में। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक? NBFC एंड बैंक प्राइमरीली कस्टमर डीलिंग करता है, पब्लिक डीलिंग करता है। वो लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, और NBFC को डिपॉजिट्स मतलब ऐसे एट लार्ज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की अनुमति नहीं है RBI से। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए बेटा कि हम आपकी पोस्टिंग, अगर दिल्ली से आप वाकिफ़ हैं, उत्तराखंड से वाकिफ़ हैं, इन दोनों स्टेट में ना करके हम कहीं भी कर दे, राजस्थान या UP जहाँ इसके ब्रांचेज हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? सर, मेरे लिए तो इवन एक्साइटिंग होगा, बिकॉज मेरे बहुत सारे साल जा चुके हैं प्रिपरेशन में, और मैं अपने करियर की लाइफ में जाना ही चाहती हूँ। एंड इट विल बी गुड एंड एक्साइटिंग टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू थिंग्स एंड स्टार्ट माई करियर। ओके, इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? Sir, 2017 I completed my graduation. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डिड टिल नाउ, प्लीज एक्सप्लेन। Sir, after 2017 I started to prepare for banking, because while I was completing my graduation I researched for what all can I do, and the syllabus here of the exam, that is reasoning, English and quantitative aptitude, I was kind of fine with it. I practiced reasoning. I started doing reasoning. I enjoyed doing it. I was fine in English. In quantitative aptitude, I had to work because that was my little weaker part. But I thought that this is the sector, this is the opportunity that can give me to start my career afresh, because the only eligibility required here is that you have to be a graduate. So I started preparing for it. Then slowly and gradually I started to clear prelims, mains and interview, and till now I have a
appeared in IBPS PO interview and also the interview of this bank last year that was held in December 2023. ओके बेटा, फिर भी आपको इतना समय लग गया, अगर कहें तो 4-3-7 साल लग गए, कोविड भी बीच में आया, सवाल का जवाब हिंदी में देंगी आप, तो 7 साल लग गए आपका सिलेक्शन IBPS PO या नैनीताल बैंक में नहीं होने का। सैल्यूट है आपको कि आप लगी हुई हैं, इंटरव्यू बार बार दे रही हैं, वहाँ नहीं होने का क्या चांसेस हैं और आगे क्या लगता है आपको जॉब आपका होगा? सर बिल्कुल होगा, कब तक नहीं होगा, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है। और जो इंटरव्यू के बाद मुझ में कमियां लगी, सबसे पहली चीज़ यही है कि मेरे को थोड़ा तेज़ बोलने की आदत है, मतलब मैं बहुत तेज़ बोलती जाती हूँ, उस पर मैंने काम किया। और दूसरी चीज़ कि मैंने पहले जब इंटरव्यूज़ दिए तो कहीं पे कमी रह गई कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मैं लिख लेती थी चीज़ें बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी क्लियरली, तो उस चीज़ पे मैं इस बार काम करके आई हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर सर्विंग इन दिस बैंक। आज या कल परसों पेपर वगैरह पढ़ा है आपने? हाँ जी पेपर सर। वगैरह। अभी किन राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं? सर अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं और आने वाला जो इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। हाँ। हल्द्वानी न्यूज में था, वहाँ कुछ दंगे वगैरह हुए थे कुछ समय पहले। आप हल्द्वानी से हैं? हाँ जी। मुझे बिल्कुल आराम से बताइए उसके बारे में। जी सर, हल्द्वानी में बीच में राइट्स हुए थे क्योंकि हल्द्वानी में रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है। तो जो हल्द्वानी की एक मुस्लिम एरिया में एक कम्युनिटी जो रहती से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने फिर राइट्स वगैरह किए जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, काफ़ी पुलिस स्टेशन वगैरह काफ़ी ऐसे चीज़ों का नुकसान हुआ और फिर उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। जो थे जिनको पकड़ा गया था उनको जेल में भी डाला गया था। और ये जो केस है, ये रोड चौड़ी करने का जो उनकी उनका जो मदरसा तोड़ रहे थे उसका केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है बाकी। ओके। When Uttarakhand was separated from UP, in which year? Sir, in the year 2000, on 9th November 2000 to be specific. Okay. How many siblings you are having? Sir, me and my sister, we are 2. Okay. What she is doing? Sir, my sister works in an MNC in the field of content marketing. What your father is doing? My father is a farmer. In Haldwani itself, we have farm to farm. Last year के कुछ सब्जेक्ट्स याद हैं आपके ग्रेजुएशन के? हाँ सर, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सारी चीजें लास्ट ईयर में पढ़ी गई थी। What is Newton's law? Sir, there are 3 Newton's law. The first is the law of inertia, that an object that is in motion, it continues to be in its position until and unless an external force is applied on it. The second law tells that force applied on a body is directly proportional to its acceleration, and the third law states that every action has an equal and opposite reaction. Okay. What is Raman effect? I am sorry sir, I am not very sure about it. नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का खोज किया था, आपको देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज फिजिक्स के फील्ड में मिलता है क्या? हाँ जी सर, नोबेल प्राइज 5 फील्ड्स में मिलता है जिनमें से फिजिक्स भी एक फील्ड है। इस बार फिजिक्स का नोबेल किसको दिया है और किस फील्ड में दिया है? सर इस बार फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2 लोगों में शेयर हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है जॉन जे हॉपफील्ड, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और जिनमें से दूसरा इंसान जो है उसका नाम है जियोफ्रॉय हिंटन, ये आपके एक ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इनको मिला है क्योंकि इन्होंने मशीन लर्निंग को एनेबल किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ, जो बहुत ही फाउंडेशनल डिस्कवरी है, जो आगे जाकर के हमारे वर्ल्ड में, हमारे साइंस की फील्ड में बहुत काम आएगी। गुड। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स था केवल? जी सर। ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स रेपो रेट? Reverse repo rate is the rate at which RBI takes the extra money that banks have in their branches. RBI takes that extra money for a certain rate that is called reverse repo rate. What is difference between loans and advance?
Loans and advances. Loans Uh, is for long period of time. Home loan, auto loan, car loan. Advances is called cash credit overdraft. Cash credit is for short period of time. Advances mean short period. Loans mean longer period. okay, sir. बैड बैंक सुना है बेटा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक, ये सुना है? हाँ जी सर. कुछ They are idea है? established. And they are established for a specific purpose. They are called bad banks because they take over the bad loans of the banks, the NPAs of the banks, and then they manage them. They are also called as asset reconstruction companies, asset reconstruction company, ARCs. Yeah, sorry. बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक 2017 में मर्ज कर गए थे और बैंक ऑफ बड़ौदा का नैनीताल से रिलेशन भी है, तो दो बैंकों का नाम बताइए. Sir, I am not very sure about it, but I guess it is the Dena Bank and the Vijaya Bank. You are sure? It's 100% correct. Dena and Vijaya. जी. Okay. You are having bank account? Yes, sir. किस बैंक में है? The State Bank of India. योनो स्टैंड फॉर? You only need one. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं. Yes, sir. Yes, sir. It's Mr. C.S. Shetty. आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है. 2 लाख से ऊपर इंस्टेंट ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस. नेफ्ट स्लॉट्स में होता है. इसका कोई लोअर लिमिट कोई अपर लिमिट नहीं है. Okay, sir. Okay. ठीक है. जी. व्हाट इज द क्वालिटी सो दैट वी विल सेलेक्ट यू? आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको लें? Sir, I have developed good communication skills till now, so I think I can communicate effectively and clearly with the customers as well as with my colleagues, with my respected seniors and with my dear juniors, so that we all can work towards a common goal. The second thing I find that will also help me in this role is that I have developed a good level of adaptability to situations. So that will help me when I will be posted to different places. I like connecting with the culture of new places. Okay. I like all these things. अभी लेबनान क्यों न्यूज में था, आपको पता है? लेबनान Lebanon, yes sir, there is some issue going on between Lebanon and Israel, and it was in news because of the strikes and bombing. या लेबनान से रिलेटेड पेजर ब्लास्ट पढ़ लेना आप. Okay sir. ओके. यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और लेडी हैं जो बड़े न्यूज में है इलेक्शंस को लेकर के, उनका क्या नाम है? I am sorry sir, I am unaware. कमला हैरिस. कमला हैरिस. Kamala Harris. Okay, Kamala Harris. Okay. Okay guys, now I am going to give feedback to my student. She is going well. Her rate of speech is little bit high. इन्होंने खुद भी बताया कि ये रेट ऑफ स्पीच इनका हाई है. पिछले 2 मॉक में मैं इनको फीडबैक दूंगा. गाइज आपको आपका वॉल्यूम तेज रखना है, बट रेट ऑफ स्पीच थोड़ा आराम से बोलना है. इनको बिल्कुल इनका रेट ऑफ स्पीच ज़्यादा है, तो आप लोग भी ऐसा ना करें. मैं आप लोग को आपके मॉक का फीडबैक दूंगा. अभी फ़िलहाल मैं कृतिका को उसका फीडबैक देता हूँ. ओके, आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिए. मेरा नंबर है 7503235358 अबाउट नैनीताल बैंक PO एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंटरव्यू. गॉड ब्लेस यू.